ایک ایسے مخلص بیٹے کی کہانی ہے جو اپنے بوڑھے باپ کی آخری خواہش پوری کرنے کے لیے ایک ایسے خاندان کی مدد کرتا ہے جو کبھی ان کی بربادی کا سبب بنا تھا۔ لیکن کہانی کے آخر میں انکشاف ہوتا ہے کہ قربانی اور معافی کا اصل حقدار کون تھا۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر آپ کو زندگی کے آخری موڑ پر معلوم ہو کہ جس انسان کو آپ نے عمر بھر اپنا مسیحا مانا وہ اصل میں آپ کی بربادی کا ذمہ دار تھا، تو آپ پر کیا گزرے گی؟ یہ کہانی کسی فلم کا اسکرپٹ نہیں، بلکہ ہمارے اپنے معاشرے کا وہ تلخ سچ ہے جو اکثر بند دروازوں کے پیچھے دم توڑ دیتا ہے۔ لاہور کے ایک پرانے تنگ دلیوں والے محلے میں رہنے والے 30 سالہ زبیر کے پیروں تلے سے بھی زمین اس وقت نکل گئی جب اس کے باپ امجد صاحب نے ہسپتال کے ICU میں دم توڑنے سے چند منٹ پہلے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک ایسی وصیت کی جس نے زبیر کی دنیا کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ کمرے میں صرف مانیٹر کی بیپ بیپ کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ امجد صاحب کی آنکھوں میں عجیب سی بے چینی اور خوف تھا۔ انہوں نے اپنی کانپتی ہوئی انگلیوں سے زبیر کی کلائی کو اتنی طاقت سے پکڑا کہ زبیر تڑپ اٹھا۔ امجد صاحب نے اکھڑتی ہوئی سانسوں کو سنبھالتے ہوئے کہا، زبیر بیٹا، کاشف صاحب کا خاندان وہ سڑک پر آ گئے ہیں، ان کا سب کچھ بک گیا ہے، تمہیں ہر حال میں ان کی مدد کرنی ہوگی۔ یہ میری آخری خواہش ہے زبیر، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میری روح کو قبر میں بھی کبھی سکون نہیں ملے گا، کبھی نہیں۔ یہ الفاظ کہتے ہی ان کی گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی اور مانیٹر کی لکیر سیدھی ہو گئی۔ زبیر کے لیے یہ حکم کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ وہ وہیں منجمد ہو کر رہ گیا۔ اس کا ذہن تازیانے کی طرح 5 سال پرانے ماضی میں لوٹ گیا۔ کاشف صاحب شہر کے ایک معروف متمول بزنس مین تھے جن کی ٹیکسٹائل فیکٹری میں امجد صاحب نے 20 سال تک بحیثیت ہیڈ اکاؤنٹنٹ نہایت ایمانداری سے کام کیا تھا۔ لیکن 5 سال پہلے فیکٹری میں ایک بہت بڑا مالیاتی سکینڈل ہوا، کروڑوں روپے غائب ہو گئے۔ کاشف صاحب نے اپنی چوری اور نااہلی کو چھپانے کے لیے سارا ملبہ معصوم سیدھے سادھے امجد صاحب پر ڈال دیا۔ زبیر کو وہ رات آج بھی اچھی طرح یاد تھی جب محلے کے سب لوگ تماشائی بنے کھڑے تھے اور پولیس امجد صاحب کو ہتھکڑی لگا کر لے جا رہی تھی۔ وہ ذلت، وہ رسوائی اور محلے والوں کے طعنے زبیر کے دل پر نقش ہو گئے تھے۔ اگرچہ بعد میں ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے امجد صاحب رہا ہو گئے، لیکن اس صدمے اور بدنامی نے انہیں ایسا توڑا کہ وہ فالج کے مریض بن کر بستر سے لگ گئے۔ زبیر نے اپنی جوانی، اپنے خواب، سب کچھ داؤں پر لگا دیے۔ اس نے دن رات ایک کر کے صبح نوکری اور رات کو ٹیوشنز پڑھا کر اپنے باپ کے علاج کے اخراجات اٹھائے اور گھر چلایا۔ اور آج وہی باپ مرتے وقت اپنے سب سے بڑے دشمن، اپنی بربادی کے ذمہ دار شخص کے خاندان کی مدد کا کہہ رہا تھا۔ یہ بات زبیر کے گلے سے نیچے نہیں اتر رہی تھی۔ اندرونی جنگ اور مشکل فیصلہ۔ امجد صاحب کی تدفین کے بعد کئی دن تک زبیر شدید ذہنی کرب اور کشمکش میں مبتلا رہا۔ وہ رات بھر صحن میں ٹہلتا رہتا، سگریٹ کے دھوئیں میں اپنے غصے اور الجھن کو اڑانے کی کوشش کرتا۔ اس کے دل میں کاشف صاحب کے پورے خاندان کے لیے نفرت کی ایک تیز آگ دہک رہی تھی۔ وہ خود سے سوال کرتا کہ میں اس شخص کے بچوں کی مدد کیوں کروں جس نے میرے ہنستے کھیلتے گھر کو جہنم بنا دیا، جس کی وجہ سے میرا بوڑھا باپ بستر پر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ ایک شام جب وہ سر پکڑے بیٹھا تھا، اس کی والدہ اس کے پاس آئیں۔ انہوں نے زبیر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے بولی، زبیر، میں جانتی ہوں تمہارے دل پر کیا گزر رہی ہے، لیکن تمہارے والد نے زندگی میں کبھی کسی کا برا نہیں چاہا۔ وہ نماز کاشف، تہجد گزار انسان تھے۔ اگر انہوں نے مرتے وقت یہ وصیت کی ہے تو اس کے پیچھے ضرور کوئی ایسی بڑی وجہ ہوگی جو شاید ہماری عقل سے بالاتر ہے۔ بیٹا، باپ کی آخری خواہش کا مان رکھنا سچے بیٹے کا فرض ہوتا ہے۔
तुम नफरत को अपने फर्ज पर गालिब मत होने दो। अपनी माँ के इसरार, उनके आंसुओं और अपने ज़मीर के माबैन पसने के बाद ज़ुबैर ने बिलाखिर एक फैसला किया। उसने सोचा कि वो सिर्फ अपने बाप की रूह के सुकून के लिए काशिफ साहब के खानदान को ढूंढेगा, उनकी बस इतनी मदद कर देगा कि उसका फर्ज पूरा हो जाए और फिर हमेशा के लिए उनसे नाता तोड़ लेगा। ज़ुबैर ने फैक्ट्री के पुराने मुलाजमीन और अपने ज़राए का इस्तेमाल करते हुए काशिफ साहब के बारे में मालूमात इकट्ठी करना शुरू की। जब मालूमात सामने आईं तो ज़ुबैर हैरान रह गया। मुकाफ़ाते अमल ने इतनी जल्दी अपना रास्ता ढूंढ लिया था कि यकीन करना मुश्किल था। काशिफ साहब के सगे भाइयों और शरारतदारों ने उनकी पीठ में छरा घोंपा था। उन्होंने जाली कागजात के जरिए पूरी जायदाद और फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया था। काशिफ साहब ये सदमा बर्दाश्त न कर सके और 2 साल पहले दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। उनकी मौत के बाद कर्जखाहों ने उनका आलीशान बंगला और गाड़ियां भी जब्त कर लीं। अब उनकी बेवा और एक जवान बेटी अलीशा शहर के एक इंतहाई पसमानदा, गरीब और सस्ते इलाके में किराए के एक छोटे से मकान में किस्मपरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे। गुर्बत की दहलीज पर ज़ुबैर गाड़ी चलाकर उस पसमानदा इलाके की तरफ रवाना हुआ। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, सड़कें तंग और माहौल तारीक होता जा रहा था। अमीरों की बस्ती से निकलकर वो एक ऐसी जगह पहुंच चुका था जहां गुर्बत दीवारों से टपक रही थी। गाड़ी एक तंग गली के बाहर खड़ी करके वो पैदल आगे बढ़ा। गली में खड़ा पानी और बूबास फैली हुई थी। पता पूछते पूछते वो एक खस्ता हाल 2 मरले के मकान के सामने पहुंचा, जिसका नीला रंग उखड़ चुका था। उसने गहरा सांस लिया, अपने दिल की तेज धड़कनों को काबू में किया और दरवाजे पर लगी पुरानी जंजीर को हिलाया। चंद लम्हों के बाद एक नहीफ सी आवाज आई, कौन है? और दरवाजा आहिस्ता से खुला। सामने एक 20-21 साल की लड़की खड़ी थी। उसके चेहरे पर जर्दी थी, आंखों के गिर्द सियाह हल्के थे और लिबास सादा लेकिन इंतहाई बावकार था। वो अलीशा थी। ज़ुबैर ने अपने लहजे को जितना मुमकिन हो सके सर्द और रस्मी रखते हुए कहा, मेरा नाम ज़ुबैर है। मैं अमजद साहब का बेटा हूँ। लफ्ज़ अमजद सुनते ही अलीशा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में खौफ, शर्मिंदगी और बेबसी के तासरात बैक वक्त उभर आए। उसे लगा कि शायद ज़ुबैर अब उनकी इस कसमपरसी की हालत का तमाशा बनाने, पुराना बदला लेने या कोई नया ताना देने आया है। वो खौफसदा होकर एक कदम पीछे हट गई और लरजती हुई आवाज में बोली, आप यहाँ क्यों आए हैं? हमारे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा। मेरे वालिद इस दुनिया में नहीं रहे, हमारा सब कुछ छिन चुका है। खुदा के लिए हमें हमारे हाल पर छोड़ दें। ज़ुबैर ने उसकी आंखों में झांकते हुए देखा कि वहाँ कोई तकब्बुर नहीं, सिर्फ एक टूटी हुई लड़की की लाचारी थी। उसने अपने लहजे को थोड़ा नरम किया और कहा, मैं यहाँ आपसे लड़ने या कोई पुराना हिसाब बेबाक करने नहीं आया। मेरे वालिद का पिछले हफ्ते इंतकाल हो गया है और उन्होंने दम तोड़ने से पहले मुझसे एक सख्त वादा लिया था कि मैं आप लोगों की हर मुमकिन मदद करूं। मुझे मालूम हुआ है कि आपको नौकरी की सख्त ज़रूरत है। मेरी एक छोटी सी सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी कंपनी है। अगर आप चाहें तो कल से वहां एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभाल सकती हैं। तनख्वाह आपकी ज़रूरत के मुताबिक होगी। अलीशा को अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था। जिस शख्स के खानदान को उसके बाप ने मुबैना तौर पर सड़क पर ला खड़ा किया था, उसी का बेटा आज उनके बुरे वक्त में मसीहा बनकर खड़ा था। उसी दौरान अंदर से अलीशा की बीमार वालिदा की खांसने की आवाज़ आई। वो लाठी तकती हुई बाहर आईं
और जब उन्होंने जुबैर का मकसद सुना तो उनकी आंखों से शुक्राने के आंसू बह निकले। उन्होंने जुबैर के सर पर हाथ रखकर ढेरों दुआएं दी और अलीशा को नौकरी ज्वाइन करने की इजाज़त दे दी। बदले हुए हालात और नया एहसास। अगले ही दिन से अलीशा ने जुबैर के ऑफिस में काम करना शुरू कर दिया। शुरू के चंद हफ्ते वो बहुत खामोश और सहमी हुई रहती थी। वो ऑफिस के दूसरे मुलाजमीन से दूर रहती और सिर्फ अपने काम से काम रखती। लेकिन जुबैर ने महसूस किया कि वो इंतहाई ईमानदार, वक्त की पाबंद और अपने काम में माहिर थी। वो हर छोटी से छोटी चीज़ का हिसाब किताब इतनी बारीकी से रखती कि जुबैर खुद दंग रह जाता। वक्त गुजरने के साथ साथ ऑफिस का माहौल बदला। जुबैर ने कई बार अलीशा की खामोशी को पढ़ने की कोशिश की। एक दिन जब ऑफिस टाइम ख़त्म हो चुका था और सब मुलाजमीन जा चुके थे, अलीशा जुबैर के केबिन में कुछ फाइलें साइन करवाने आई। जुबैर ने फाइलें साइन करते हुए पूछा, अलीशा, क्या आपको यहाँ कोई तकलीफ है, कोई परेशानी? अलीशा ने नज़रें झुकाकर कहा, नहीं जुबैर साहब, आपने और आपके स्टाफ ने मुझे जो इज्जत दी है मैं उसके काबिल नहीं थी। मैं तो रोज़ उस खौफ में जुती थी कि शायद आप किसी दिन मुझे नौकरी से निकाल देंगे या अपने वालिद का बदला लेंगे। जुबैर ने कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाई और संजीदगी से कहा, बदला कमज़ोर लोग लेते हैं अलीशा। मैं सिर्फ अपने बाप की वसीयत पूरी कर रहा हूँ। लेकिन आपको देखकर मुझे लगता है कि इंसान अपने वालिदैन के आमाल का जिम्मेदार खुद नहीं होता। आपके वालिद ने जो किया वो उनका और खुदा का मामला है, लेकिन आप एक बेहतरीन इंसान हैं। अलीशा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ कहे बगैर फाइलें उठाए और चली गई। उस दिन के बाद से जुबैर के दिल में काशिफ साहब के ख़ानदान के लिए जो नफ़रत का गुबार था वो मुकम्मल तौर पर छट गया। अब उसके दिल में अलीशा के लिए एक अनोखा एहतराम और एक अनजाना सा एहसास जन्म लेने लगा था। उसे लग रहा था कि उसने अपने बाप की रूह को सुरखरू कर दिया है। उसने दुश्मन की बेटी को पनाह देकर अपने खानदान का ज़र्फ साबित कर दिया है। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि सच्चाई की तहीं अभी खुलना बाकी थी, और जो सच सामने आने वाला था वो उसकी पूरी जिंदगी की बुनियादों को हिलाकर रख देने वाला था। स्टोर रूम का संदली राज। एक इतवार का दिन था। जुबैर की वालदा ने उससे कहा कि घर के ऊपरी हिस्से में बने पुराने स्टोर रूम की सफाई कर दी जाए, क्योंकि वहां बरसों से मिट्टी जमा हो रही थी और अमजद साहब की वफात के बाद वहां की चीज़ों को संभालना ज़रूरी था। जुबैर ने बाजू चढ़ाए और स्टोर रूम का रुख किया। वहां पुरानी कुर्सियां, टूटी हुई मेज़ें और अमजद साहब के इस्तेमाल के पुराने रजिस्टर और डायरियां बिखरी पड़ी थीं। सफाई करते करते जुबैर की नज़र एक पुराने लकड़ी के संदूक के पीछे के छुपे हुए जंग आलूद लोहे के छोटे से डब्बे पर पड़ी। जुबैर के जहन के किसी कोने में एक याद चमकी। ये वही डब्बा था जिसे अमजद साहब अपनी जिंदगी में हमेशा अपनी अलमारी के सबसे निचले हिस्से में ताले के अंदर रखते थे और किसी को उसे छूने की इजाज़त नहीं थी। जुबैर को याद था कि एक बार बचपन में उसने उस डब्बे को हाथ लगाया था तो अमजद साहब ने उसे सख्त डांट पिलाई थी। तजस्सुस की एक तेज लहर जुबैर के रगों पैर में दौड़ गई। उसने उधर उधर देखा, एक पुराना हथौड़ा उठाया और उसके जंग आलूद ताले पर जोर से मारा। 2-3 ज़रबों के बाद ताला टूट गया। जुबैर ने धड़कते दिल के साथ डब्बे का ढक्कन उठाया। अंदर कुछ पुराने पीले पड़ चुके फैक्ट्री के ऑडिट पेपर्स, कुछ बैंक की रसीदें और एक चमड़े की जल्द वाली पुरानी डायरी रखी थी। जुबैर ने डायरी उठाई। पहला सफ़ा खोला तो उस पर अमजद साहब के हाथ की लिखी हुई खूबसूरत उर्दू तहरीर थी। ये अमजद साहब की ज़ाती डायरी थी। जुबैर ने तजस्सुस के मारे सफ़ात पलटना शुरू किए। वो उनके फैक्ट्री के दिनों के अहवाल पढ़ता गया।
लेकिन जैसे ही वो 5 साल पुरानी तारीखों पर पहुंच, उसके चेहरे के तासीरात यकसर बदल गए। उसकी आंखें फैल गईं, माथे पर सर्द पसीने की बूंदें नमूदार हो गईं और उसके हाथ उस बुरी तरह कांपने लगे कि डायरी उसकी गोद से फिसलकर ज़मीन पर गिर गई। सच्चाई का होलनाक इंकशाफ। ज़ुबैर ने लरसते हाथों से दोबारा डायरी उठाई और उन सफ़हात को बार बार पढ़ा, उस उम्मीद में कि शायद वो कुछ गलत पढ़ रहा है, लेकिन वहाँ जो लिखा था वो पत्थर पर लकीर था। डायरी में 5 साल पहले के उस फैक्ट्री स्कैंडल की पूरी हकीकत लिखी थी, जो ज़ुबैर की सोच और दुनिया की नज़रों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। डायरी के मुताबिक वो करोड़ों रुपए का मालियाती स्कैंडल काशिफ साहब ने नहीं किया था, बल्कि वो चोरी खुद अमजद साहब ने की थी। डायरी का वो सफ़ा ज़ुबैर के दिल पर खंजर की तरह लगा, जहां अमजद साहब ने लिखा था, आज मुझसे ज़िंदगी का सबसे बड़ा गुनाह सरजद हो गया। मेरी सगी भांजी ज़ुबैर की कज़न कैंसर के आखिरी स्टेज पर थी। उसके इलाज के लिए 50 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत थी और हमारे पास कुछ नहीं था। मैंने फैक्ट्री के अकाउंट्स में हीरा फेरी करके वो रकम चुराई। मुझे लगा था कि मैं बाद में आहिस्ता आहिस्ता ये रकम लौटा दूंगा, लेकिन ऑडिट टीम ने मुझे पकड़ लिया। जब काशिफ साहब के सामने ये बात आई तो उन्होंने मुझसे तन्हाई में पूछा। मैं उनके पैरों में गिर गया। मैंने रोते हुए उन्हें अपनी मजबूरी बताई कि अगर मैं जेल चला गया तो मेरा जवान बेटा ज़ुबैर और मेरी बीवी मुआशरे में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मेरे बेटे का मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। डायरी का अगला सफ़ा ज़ुबैर की रूह को झंझोड़ गया। काशिफ साहब ने जो किया वो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। उन्होंने मुझ पर रहम खाया। उन्होंने पुलिस और मीडिया के सामने सारा इल्ज़ाम अपने सर ले लिया। उन्होंने कहा कि ये हीरा फेरी उन्होंने खुद अपने बिजनेस पार्टनर से छुपा कर की है। उन्होंने मुझे बचाने के लिए अपनी इज्जत, अपना वकार और अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। मुझे फैक्ट्री से निकाल ज़रूर दिया ताकि पार्टनर्स मुतमईन हो जाएं, लेकिन पुलिस केस अपने नाम कर लिया। उस केस की वजह से उनके भाइयों ने उन्हें धोखा दिया। उनका बिजनेस तबाह हो गया। वो सड़क पर आ गए, लेकिन उन्होंने मरते दम तक मेरा राज फाश नहीं किया। मैं उस एहसासे जुर्म के बोझ तले दबकर फालिज का मरीज बन गया हूँ। मैं ज़ुबैर को सच बताने की हिम्मत नहीं रखता, लेकिन खुदा जानता है कि काशिफ एक फरिश्ता था और मैं एक गुनाहगार। एहसासे जुर्म और कफ़ारा ज़ुबैर के सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा था। वो शख्स जिसे वो उम्र भर एक मासूम मजलूम और देवता समझता रहा, वो असल में एक चोर था। और जिस इंसान को वो दुनिया का सबसे बड़ा वलन समझता रहा, जिससे वो नफरत करता रहा, वो असल में उनके ख़ानदान का सबसे बड़ा मोहसिन और कुर्बानी का मुजस्मा था। अमजद साहब को फालिज किसी सदमे से नहीं, बल्कि इसी शदीद एहसासे जुर्म की वजह से हुआ था, और मरते वक्त वो इसी गुनाह का तफ़ारा अदा करने के लिए तड़प रहे थे। ज़ुबैर का पूरा वजूद लरज़ रहा था। उसे अपने आप से, अपने बाप से और अपनी सोच से घन आने लगी। वो सोचने लगा कि वो किस मुंह से अलीशा के सामने खड़ा होता था, किस तकब्बुर से उसने अलीशा को नौकरी दी थी, ये सोचकर कि वो एक एहसान कर रहा है। असल में तो वो एहसान काशिफ साहब का था, जिसका कर्ज ज़ुबैर की 7 नस्लें भी नहीं उतार सकती थीं। वो पागलों की तरह स्टोर रूम से नीचे उतरा। उसकी माँ ने उसका सफ़ेद चेहरा और आंखों में जुनून देखकर पूछा, क्या हुआ ज़ुबैर? लेकिन ज़ुबैर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने डायरी उठाई, गाड़ी की चाबी पकड़ी और तपती दोपहर में गाड़ी अलीशा के घर की तरफ दौड़ा दी। रास्ते में उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे और स्टीयरिंग पर उसके हाथ कांप रहे थे। उसका ज़मीर उसे मलामत कर रहा था कि तुमने एक फरिश्ते पर तोहमत लगाई, तुमने उसके बच्चों को हकारत से देखा। माफ़ी का सफ़र और सच्ची अखलाकियात। जब ज़ुबैर अलीशा के घर पहुंचा
तो उसने अंधाधुंध दरवाजे पर दस्तक दी। अलीशा ने दरवाज़ा खोला। ज़ुबैर की ये हालत देखकर वो और उसकी वालदा बुरी तरह घबरा गईं। ज़ुबैर के बाल बिखरे हुए थे और वो हाँप रहा था। ज़ुबैर साहब, खुदा के लिए बताइए क्या हुआ? आपकी ये हालत क्यों है? क्या ऑफिस में कोई नुकसान हो गया है? अलीशा ने शदीद परेशानी से पूछा। ज़ुबैर ने कुछ नहीं कहा। उसने वो पुरानी डायरी अलीशा की बीमार वालदा के सामने मेज़ पर रख दी और अगले ही लम्हे वो फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया और अपने दोनों हाथ अलीशा की माँ के पैरों पर रख दिए। वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ा। मुझे माफ़ कर दें। खुदा के लिए मुझे और मेरे मरहूम वालिद को माफ़ कर दें। मैं कितना अंधा था, मैं कितना जाहिल था। मैं उम्र भर आपके वालिद को अपने ख़ानदान का दुश्मन और अपनी बर्बादी का सबब समझता रहा, जबकि वो तो हमारे मोहसिन थे। गुनाहगार काशिफ साहब नहीं थे, गुनाहगार मेरे वालिद अमजद साहब थे। ज़ुबैर ने रोते हुए सारा सच उगल दिया और अपनी पेशानी उनके पैरों से लगा दी। अलीशा और उसकी माँ गंग खड़ी रह गईं। कमरे में सिर्फ ज़ुबैर के सिसकने की आवाज़ें गूंज रही थीं। अलीशा ने आगे बढ़कर डायरी के सफ़हात देखे। चंद लम्हों की खामोशी के बाद काशिफ साहब की बेवा आगे बढ़ीं। उन्होंने शफ़क़त से ज़ुबैर के कंधों को पकड़ा और उसे ज़मीन से उठाकर सोफ़े पर बिठाया। उनके चेहरे पर कोई गुस्सा या हैरत नहीं थी, बल्कि एक पुरसुकून और तमानियत भरी मुस्कुराहट थी। उन्होंने ज़ुबैर के सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा उठो, रो मत। ये सच मेरे लिए नया नहीं है, मैं ये सब पहले दिन से जानती थी। ज़ुबैर ने हैरत से आंसू पोंछते हुए उनकी तरफ देखा। आप जानती थीं? हाँ बेटा, उन्होंने गहरा सांस लेते हुए कहा। जब काशिफ ने वो केस अपने सर लिया था तो मैंने उनसे झगड़ा किया था कि आप किसी दूसरे के लिए अपने बच्चों का मुस्तकबिल क्यों दांव पर लगा रहे हैं। तब काशिफ ने मुझसे कहा था कि अमजद एक बहुत अच्छा और मजबूर इंसान है, उससे बस हालात के जबर और मोहब्बत में एक गलती हो गई है। अगर मैंने सच बता दिया तो पुलिस उसे ले जाएगी और उसका जवान बेटा ज़ुबैर माशरे के तानों से टूट जाएगा, उसका मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। मैं तो संभल जाऊंगा, लेकिन वो बच्चा कभी सर उठाकर जी नहीं पाएगा। बेटा, मेरे शौहर ने जो किया वो सिर्फ अल्लाह की रज़ा और एक बाप का भरम रखने के लिए किया था। और देखो, आज उनकी इसी सच्ची और बेगर्ज नेकी का सिला है कि खुदा ने तुम्हें, यानी इसी अमजद के बेटे को, हमारे बुरे वक्त में हमारा सहारा और वसीला बनाकर भेज दिया। नेकी कभी ज़ाया नहीं होती ज़ुबैर, वो लौट कर ज़रूर आती है। अलीशा की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उनमें अब अपने वालिद के लिए फ़ख्र की चमक थी। ज़ुबैर ने उस दिन ज़िंदगी का सबसे बड़ा और सच्चा अखलाकी सबक सीखा। हम अक्सर ज़ाहिरी हालात, लोगों की बातों और अधूरे सच को देखकर दूसरों के बारे में नफ़रत की दीवारें खड़ी कर लेते हैं, लेकिन सच्चाई उससे कहीं गहरी और पाकीज़ा होती है। सच्ची नेकी वो नहीं जो दुनिया को दिखाई जाए, बल्कि वो है जो खामोशी से किसी की ज़िंदगी बचा जाए। ज़ुबैर ने उस दिन अहद किया कि वो ज़िंदगी भर काशिफ साहब के इस एहसान का बदला चुकाने की कोशिश करेगा। उसने अलीशा और उसकी माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ा और कुछ अरसे बाद दोनों ख़ानदानों की रजामंदी से ज़ुबैर और अलीशा का निकाह हो गया। इस तरह एक नस्ल की गलती का कफ़ारा दूसरी नस्ल ने मोहब्बत, सच्चाई और हमेशा कायम रहने वाली वफादारी से अदा किया।